ہوتا ہے کہ ہم گھر جا کر کہتے ہیں کہ کلام کے وسیلہ سے ہمیں بہت زیادہ برکت ملی ہے. کیا ملی ہے جی؟ کیا ملی ہے؟ تو گھر والے کہتے ہیں کلام کیا تھا؟ کہتے نہیں ایسا سمجھ نہیں ہے کیونکہ دھیان اسی ہے. کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا، اور جس کا توکل خدا کے بیٹے یسوع ناصری پر ہے خدا کی برکتیں اس کے جو ہے وہ ساتھ ہے. ہاللیلویا. آج میں ساری داریے مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی تیسری آیت جو ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر دیجیے. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیونکہ وقت نزدیک ہے. آمین. خدا ان کے کلام کو پڑھے اور سن جانے پر خدا ان کی خاص برکتوں سے بولے آمین. بلند آواز سے بولے آمین. اب اپنے سروں کو جھکائیے، اپنے سروں کو جھکائیے اور خدا سے کہیے مالک آج ہم سے کلام کیجیے. خدا سے کہے مالک خدا، کیونکہ جب خدا کلام کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جب خدا کلام کرتا ہے تو بس مردہ بدنوں میں زندگی آ جاتی ہے. جب خدا کلام کرتا ہے تو بیداری آنا شروع ہو جاتی ہے. جب خدا کلام کرتا ہے سوچیں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. جب خدا کلام کرتا ہے تو خدا کے لوگ جو ہے وہ خوشی اور شادمانی سے بن جاتے ہیں. خدا سے کہیے اے خدا ہم سے بول، اپنے ہمارے گھرانوں کے اندر خدا مداخلت کر میرے والی خدا، تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو. خدا کی شکر گزاری کیجیے. خدا سے کہے اے خدا ہم پر اپنے کرم کی نظر کر، کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. آسمان کے خدا یسوع مسیح کے نام سے ہم رب لفاظ آپ کی حضوری کے اندر یسوع مسیح کے نام سے رب لفاظ اپنے آپ کو جھکاتے اور منت کرتے خداوند اپنی قدرت کو جاری کرتے مہربان خدا، کیونکہ آپ اپنے لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ہم سبوں کو برکت دیجیے خداوند یسوع اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیجیے یسوع کے نام سے. خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے کہ خدا نے آج پھر سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. میں خدا کی بڑی شکر گزاری کرتا. میرا نام پاسٹر شوز اقبال ہے اور میں اعظم ٹون گلی نمبر 11 کے اندر میرا چرچ ہے. اور یہ جو بھائی ندیم ہے، سسٹر نادیہ ہے، خدا کی شکر گزاری کرتے. بہت زیادہ یہ خدا کے آدموں سے پیار کرتے ہیں اور ان کی وساطت سے آج خدا نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے بادشاہ کی آواز کو جو ہے وہ سنیں. اور آج ہم خدا کی کلام میں سے سیکھیں گے کیونکہ وقت نزدیک ہے. کیا سیکھیں گے جی؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے. جو حوالہ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا کیا ہے جی؟ بلندواز سے کیا ہے جی؟ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھنے والا، سننے والا، اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے. اور ہم جو ہے وہ مبارک لوگ ہیں. کیونکہ جب میں بائبل کے تعارف کو پڑھ رہا تھا، بائبل مقدس کے جو ہے وہ 35,86,480 لفاظ ہے، 1189 ابواب ہے، ٹوٹل آیتیں ہیں 31,102 66 کتابیں ہیں. 40 لوگوں نے لکھا ہے. 1600 سال میں یہ لکھی گئی ہے. 247 ملک ہے، 117 قومیں ہیں، 217 مذہب ہے، 6,572 زبانیں ہیں. ہر وہ زبان، ہر وہ گھٹنا جو یسوع کے آگے جھک جائے گا خدا اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا. ہاللیلویا. یہاں پر لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا کیا ہے جی؟ مبارک ہے. جب مکاشفہ کی باری آتی ہے تو بے شمار ہمارے ذہنوں کے اندر سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں جی مکاشفہ پڑھنے
انسان جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے جی؟ کیا ہو جاتا ہے جی؟ یہاں پر لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. انسان پڑھنے سے الٹا نہیں بلکہ سیدھا ہو جاتا ہے. اس کو پڑھیے تو صحیح. ہاللیلویا. یہاں پر لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے, ہم مبارک لوگ ہیں. خدا نے ہمیں آواز دے کر بلایا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے کہ خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے. وقت کیا ہے جی؟ نزدیک ہے. بائبل کالج کے اندر ہمیں یہ بات سکھائی گئی. یہ بات داؤد کی زندگی کے بارے میں ہے اور ہسٹری کے اندر لکھی ہے. کہاں پر لکھی ہے؟ کہاں پر لکھی ہے جی؟ داؤد جب بادشاہ بن گیا, چرواہے سے کیا بن گیا؟ بادشاہ. جب داؤد چرواہے سے بادشاہ بن گیا, اس نے اپنے صلاحکار نوکروں کو محل کے اندر بلایا. کہاں پر بلایا جی؟ محل کے اندر. بلا کر کہتا ہے مجھے ایسی چیز بنا کر دو اگر میری زندگی کے اندر خوشی ہو اور میں اس چیز کو دیکھ کر رونا شروع کر دوں, اگر روتا ہوں تو میں اس چیز کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں. صلاحکار لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. کیا ہوئے جی؟ جب وہ پریشان ہوئے تو جب وہ محل کے جو ہے وہ جب اندر گئے, ان کے چہرے بڑے خوش اور شادمان تھے. جب وہ واپس آئے ان کے چہرے بڑے مایوس اور پریشان تھے. پنجابی شخص سکا دے کوئی بڑا پریشان ہوئے نا تو وڈیرے کی کہتے ہیں کی گل ہے مجھے بارے بات ہے کی گل ہے. سلیمان نے ان کے چہروں پر نگاہ کی. سلیمان نے کہا جب یہ محل کے اندر گئے تھے یہ بہت زیادہ خوش تھے اور بڑے ان کے چہرے جو ہے وہ شادمان تھے. اب یہ واپس آئے ہیں یہ پریشان کیوں ہیں, وجہ کیا ہے؟ سلیمان نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ نے ہمیں ایک مشکل سوال دیا ہے کہ اگر میری زندگی کے اندر خوشی ہو تو میں اس چیز کو دیکھ کر رونا شروع کر دوں, اگر روتا ہوں تو میں اس چیز کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں. سلیمان نے کہا یہ تو مسئلہ ہی نہیں, کیونکہ خدا نے جب خدا کسی کا چناؤ کرتے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے. کئی لوگوں کو خدا ماں کے پیٹ سے چناؤ کرتے ہیں, کئی لوگوں کو خدا جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں خدا ان کا چناؤ کرتے ہیں. یرمیہ کو خدا نے ماں کے پیٹ سے چناؤ کیا. ساؤل جو ہے جب وہ خدا کے لوگوں کو ستانے کی جو ہے وہ طرف جا رہا تھا, خدا نے اس کو اپنے کام کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا. جتنے بھی صلاحکار لوگ تھے, سلیمان نے کہا آپ ایک سونے کی انگوٹھی لے. کیسی انگوٹھی لے جی؟ اور اس کا نگ جو ہے وہ ہیرے جیسا ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ انگوٹھی جو ہے وہ سونے کی ہو, نگ جو ہے وہ ہیرے جیسا یا ہیرا ہو. اس کے اوپر یہ بات لکھی جائے کہ یہ بھی وقت گزر جائے. داؤد بادشاہ نے جب وہ رنگ پہنی ہوتی, جب اس کی زندگی کے اندر مشکلات آتی, وہ یوں دیکھ کر کہتا کہ یہ بھی وقت گزر جائے گا. جب اس کی زندگی کے اندر خوشی آتی وہ یوں دیکھ کر کہتا کہ یہ بھی وقت گزر جائے گا. اگر آج آپ کی زندگی کے اندر مشکلات ہیں تو خدا کا روح فرماتا ہے کہ یہ بھی وقت گزر جائے گا. کیونکہ آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے. کیونکہ وقت نزدیک ہے. اور یہاں پر لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی خدمت کے میدان کے اندر جو ہے وہ کلام سنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے جی؟ کلام سنا. جیسے میں کلام سنا رہا ہوں اور خدا کے کلام کو آپ سن رہے ہیں, کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. سننا مسیح کے کلام سے. اور جب یسوع مسیح نے کلام سنایا اور کلام کے وسیلہ سے ایک بہن کو, ایک جو ہے عورت کو بہت زیادہ کلام کے وسیلہ سے برکت ملی. جب برکت ملی اس
उसके चेहरे पर खुशी आ गई और वो जल्दी से कहती है, ऐ यीशु, मुबारक है वो माँ जिसने आपको दूध पिलाया, मुबारक है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया। यीशु ने कहा, ठीक है, मुबारक वो है जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता। हालेलुया, क्योंकि वक्त नजदीक है। यहाँ पर लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि दानियल की स्टोरी के बारे में। दानियल को कहां पर फेंका गया? कहां पर फेंका गया जी? तो दानियल के दोस्तों को कहां पर फेंका गया? दानियल के दोस्तों को, 3 दोस्त, हाँ जी, कहां पर फेंका गया? तो कितने लोगों को फेंका गया? कितने लोगों को? तो बादशाह ने क्या कहा? ये चौथा कौन है? क्या कहा? सवालिया निशान यहाँ पर हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी? सवालिया निशान। बादशाह ने कितने लोगों को फेंका? 3 लोगों को। और बादशाह ने कहा, ये चौथा कौन है? मैं एक जो है वो एक स्कॉलर की जो है वो मैसेज सुन रहा था और वहां पर यीशु के जलाल के लिए उन्होंने कुछ यूं जो है वो बयान किया, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से क्या है जी? जो सब नामों से क्या है? क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाग के मोती का जलाल, क्योंकि वक्त नजदीक है। क्योंकि वक्त नजदीक है। कलाम के अंदर लिखा है, खुदा का हादिम कहता है कि वो चिराग कभी बुझ नहीं सकता जो यीशु के लहू से जलाया हो, और ये इब्लीस उसे शिकस्त नहीं दे सकता जिसने दिल में यीशु को बसाया हो। दानियल के दोस्तों को कहा गया, मसीह का इनकार, खुदावंद खुदा का इनकार करो और इस जो है वो मूरत को सजदा करो। उन्होंने पलूस की तरह बड़ी दलेरी से कहना शुरू कर दिया कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारी जो है हमें जो मर्जी हमें सजा दे दो, हम मसीह का यहोवा खुदा का इनकार जो है वो नहीं करेंगे। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, नहीं करोगे तो हम आपको इस आग में जो है वो डाल देंगे। उन्होंने कहा, क्या कहा? डाल दो। जब डाल दिए गए तो एक स्कॉलर जो है वो यीशु के जलाल के लिए कुछ यूं लिखते हैं कि फेंकने से पहले आसमान पर एक मीटिंग हुई। क्या हुई जी? मीटिंग हुई। खुदावंद ने जबराइल से कहा, क्या जबराइल, मेरे चाहने वालों को बादशाह आग में फेंकने को है और हमने उनको वक्त से बचाना है, और हमारा ताबीब भी यही है, क्योंकि वक्त नजदीक है। क्योंकि वक्त नजदीक है। खुदावंद ने कहा, क्या जबराइल, हमने उनको बचाना है और वक्त से बचाना है। जबराइल, तू मुझे ये बता, आसमान से उस आग में जाने के लिए कितना वक्त लगेगा? तो जबराइल ने सोच कर कहा कि मुझे आसमान से उस आग में जाने के लिए 2 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट लगेंगे। मिकाएल से पूछा गया, मिकाएल ने सोच कर कहा, मुझे आसमान से उस आग में जाने के लिए 1 मिनट लगेगा। कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट। जबराइल ने क्या कहा? कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट लगेंगे। और मिकाएल ने कहा 1 मिनट जो है वो लगेगा। बोलने का फायदा क्या होता है, इसकी मिसाल मैं आपको उसी को देना चाहता हूँ। एक जगह पर हमारे टीचर जो है वो कलाम सुना रहे थे, और जब इंसान बोलता है तो वो एक्टिव हो जाता है, और हमारे टीचर ने कहा कि शैतान बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो जो एक जवान उस मीटिंग के अंदर सोया हुआ था वो उठकर कहता है हालेलुया, क्योंकि सुनता सी
अगर जब हम बोलते हैं हमारा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ होता है और कलाम के अंदर लिखा है जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और दाऊद की तरह कहना शुरू कर देंगे कि ऐ खुदा मेरी जान हाथ में मिल गई, तू मुझे अपने कलाम के मुताबिक जिंदा कर। दाऊद की तरह कहना शुरू कर देंगे कि ऐ खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करे। जबराइल ने कहा 2 मिनट लगेंगे, मिकाईल ने कहा 1 मिनट लगेगा। और जब बाप ने बेटा से पूछा, जब खुदा ने जनाबे मसीह यीशु से पूछा और यीशु मसीह ने कहा ऐ मालिक उसको फेंकने तो दे, मैं वहां पर पहले ही मौजूद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जबराइल कहता है 2 मिनट लगेंगे, मिकाईल कहता है 1 मिनट लगेगा। और मेरे और आपके बादशाह की कुदरत को देखिए, उसने कहा मैं पहले ही मौजूद हूँ, इसलिए वो बादशाह कहता है ये चौथा कौन है? हालेलुया। ये चौथा वही है जो ये फरमाता है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। हालेलुया। दूसरा हवाला निकालिए, इफ्सियों के नाम है। उसका 5वां बाब, उसकी 14वीं आयत, 14वीं आयत से लेकर आपका 17वीं आयत तक पढ़िए। इसलिए वो फरमाता है ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिक चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबक से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। आमीन। आमीन। आज हम क्या सीख रहे हैं? क्योंकि वक्त नजदीक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। यहाँ पर लिखा है इसलिए वो फरमाता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर क्या होगा जी? चमकेगा। चमकेगा। खुदावंद का नूर जब साउल पर चमका वो नीचे गिर गया, और जब वो उठा तो खुदा के जलाल से जो है वो खुदा का काम करने लगा, और वो कहना शुरू हो गया कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। कलाम के अंदर लिखा है कि ऐ सोने वाले जो है वो जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। कलाम के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं के मानिक चलो, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन जो है वो बुरे हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता कि खुदावन सोशल मीडिया पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुदा ने जो अपने बंदा को शरण दिया है उसका नाम जीसस द वे ऑफ लाइफ टीवी है। और मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ जहाँ पर खुदा के लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, और वहाँ पर पहुँचकर उनकी आवाज़ बनते हैं और खुदावन का जलाल जो है वो जाहिर होता है, क्योंकि खुदावन अपने लोगों से प्यार करते हैं। यहाँ पर लिखा है इसलिए वो फरमाता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठे, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। मेरे चीजों दिन जो है वो दिन ब दिन टाइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसी तरह जब हम गलातियों 4 बाब उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। और यीशु मसीह के आने का मकसद ये था, जब यीशु मसीह अपनी खिदमत का यीशु मसीह ने आगाज किया तो यीशु मसीह ने क्या बयान किया, आइए हम देखेंगे। मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत जो है वो पढ़ने में रहनुमाई करती है। इसके बाद दूसरा हवाला आप निकाल लीजिए, हिजकिय्याह 7वां बाब उसकी 7वीं आयत। और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया
तो यीशु मसीह ने कहा तौबा करो। क्या करो जी? आप बुलंद आवाज से बोल सकते हैं, क्या करो? हमारे फंक्शन जो है वो उल्टे हो गए हैं। कैसे? यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो, असि तौबा पढ़ते रहने। कलाम के अंदर यीशु मसीह ने कहा तुम होशियार बन जाओ, असि चालाक बन जाए। कलाम के अंदर लिखा है जागो और दुआ करो। हम जागते तो है फेसबुक के साथ, इंटरनेट के साथ, यूट्यूब के साथ, और ऊपर से कहते हैं ऐ खुदा हम पर रहम कर दे। खुदा पर क्या रहम करे? और यहाँ पर लिखा है और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर क्या लाओ जी? ईमान लाओ। तौबा करने में पढ़ने में जो है वो फर्क है, क्योंकि वक्त जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर तौबा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आइए हम हिजकिय्याह उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत को देखेंगे। ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। वक्त आ पहुंचा, हंगामा का दिन करीब हुआ। ये पहाड़ों पर खुशी की ललकार का दिन नहीं। आमीन। आमीन। मेरे चीजों आज हम सीख रहे हैं क्योंकि वक्त नजदीक है। अगर तौबा नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ऐ जमीन पर फंसने वाले तेरी शामत आ गई। अगर तौबा नहीं करेंगे हमारी शामत आ जाएगी। और कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ज़बूर 50 के अंदर लिखा है कि बेटे को चूमो, ऐसा न हो कि वो कहर में आए और तुम्हें तो जो है वो तबाह बर्बाद कर दे। और यहाँ पर लिखा है ऐ ज़मीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। कोरोना के अंदर जो है हमने देखा है कि माँ जो है वो बच्चे को छोड़ गई है, बच्चे जो है वो माँ को छोड़ गया है, बाप जो है वो बेटे को छोड़ गया, बेटा जो है वो बाप को छोड़ गया है। सबको अपनी अपनी जो है वो पड़ी हुई है। लेकिन कलाम के अंदर लिखा है लोग जो है वो आंसू बहाते, जो है वो सिसकते और रोटी के लिए तरसते, और लोगों के लिए जो है वो सब कुछ बंद हो गया, वो आगे ना हुआ। लेकिन ईमानदारों के लिए खुदा का आसमान खुला रहा। हालेलुया। ईमानदारों के लिए खुदावंद खुदा ने अपने लोगों से जो प्यार किया है, जो वादा किया है, वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और यहाँ पर लिखा है ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। गाँव के अंदर जब हम जाते तो जब किसी के साथ वैसे तकरार हो जाती तो वो क्या करता, ऐसे जो है वो चेहरे के ऊपर हाथ लगाकर ऐसे कहता तेल मुंह नहीं छड़ना, तेरी शामत आ गई। इसी तरह मेरे चीजों यहाँ पर लिखा है कि ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। उस आग से आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूँ। उस आग से आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो है वो आराम दूंगा। यहाँ पर लिखा है, मैं अपने जो है वो चर्च के अंदर ये कलाम सुना रहा था, टॉपिक ये था कि जब ईमानदार ही मुश्किल से निजात पाएगा तो गुनहगार का क्या ठिकाना। और यहाँ पर लिखा है कि ऐ ज़मीन पर बसने वाली तेरी शामत आ गई। आज लोग जो है वो खुदा के पास आना पसंद नहीं करते, शिफा लेते हैं और शाफी को भूल जाते हैं, और कैसे उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होगा। हम दूसरा हवाला देखेंगे ज़बूर 119 और उसकी 126 में आए। यहाँ पर मेरे चीजों लिखा है अब वक्त आ गया कि खुदावंद काम करे। खुदा काम कर रहा है, खुदा अपने लोगों को जो है वो बुला रहे हैं। इस आयत को पढ़ लीजिए, 2 आयतें। वक्त आ
खुदावन काम करे, क्योंकि उन्होंने तेरी शरीयत को बातिल कर दिया है। अच्छी आगे बढ़े। इसलिए मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूँ और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं क्योंकि वक्त नजदीक है। उस अमीर ने कहा, क्या कहा? पानी का एक कतरा ही मुझे दिया जाए। किससे कहता है? किससे कहता है जी? लाजर से कहता है। उसने सोचा कि लाजर जो है वहां पर भी मेरा गुलाम था, टुकड़ों पर जो है वो गुजारा करता है, और अब भी जो मैं जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। जब उस अमीर के बाद जो है वो वक्त ना रहा, उसने आंसू बहाए, उसने कहा, मालिक मेरी मदद कर। तो खुदा के बंदा इब्राहिम ने कहा, याद कर तू अपनी जिंदगी में जो है वो अच्छी चीजें ले चुका। यहाँ पर लिखा है, अब वक्त आ गया कि खुदावंद काम करे, क्योंकि उन्होंने तेरी शरीयत को बातिल कर दिया है। खुदा का बंदा अय्यूब कहता है कि अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा खुदा के कलाम को ज़हीरा करो, और खुदा और इब्रानियों के हद के अंदर लिखा है, और वो उसके जलाल का बर्ताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपने कलाम की कुदरत से संभालता है। और कलाम के अंदर लिखा है, अब वक्त आ गया कि खुदावंद काम करे, क्योंकि उन्होंने तेरी शरीयत को बातिल कर दिया है। इसलिए मैं तेरे फरमान को सुनने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। क्योंकि मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है वो बचाने वाले, मुहैया करने वाले, मददगार, शाहों के शाह, दुनिया के नूर, अच्छे चरवाहे, कायनात के मंबा, मंबई अनवार, यतीमों के बाप, गुनाहगारों के यार, अच्छे पासबान, राहे हक, राहे शाफी, या खुदा का शेर बबर, बिस्मा राबना, यसू अल मसीह अलही सजूद, विजह अल दुनिया बिल आहरत, आका नामदाद, फहरे वजूजात, बाइसे तहरीके कायनात, मालिक अमरोज़ी अज्जा, इब्तिदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा, सारे किब्रिया, मालिक दुनिया, रब्बे आलमीन है। वो जो गूंगों को गुनगुनाहटे, बहरों को सुमाहटे और बंद सांसों को भी चलाने की कुदरत रखता, वो जो कलाम करता तो चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती, वो जो ईमान की चंगारी को हवा देकर शोला बना देता, वो जो नूर को पोशाक की तरह पहनता और आसमान को साहिबान की तरह तानता और बादलों को अपना रथ बनाता और हवा के बाद बादलों पर सैर करता, वो यही फरमाता कि मैं जल्द आने वाला हूँ। क्या आने वाला हूँ जी? क्योंकि वक्त नजदीक है। जब हम दूसरा पतरस का तीसरा बाब और उसकी जो है वो तीसरी आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, निकाल लीजिए दूसरा पतरस का तीसरा बाब उसकी तीसरी है। बेशुमार लोग कहते हैं हमारे सर के बाल सफेद हो गए तो यीशु नहीं आया। यीशु क्यों नहीं आ रहा? इस तीसरी आयत को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है वो 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। और ये पहले जान लो कि आखिरी दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। ऐ अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। क्योंकि आज हम क्या सीख रहे हैं? क्योंकि वक्त नजदीक है। यहाँ पर लिखा तीसरी आयत के अंदर हमने पढ़ा कि हीर ज़माना के जो है वो लोग क्या करेंगे? खुदा के बंदा नूह ने कहा तौबा कर लो, कश्ती के अंदर आ जाओ। कहते हैं ये बुढ़ा पागल हो गया है। बेशुमार उसको बातें की गई और आज ईमानदारों को जो है वो बेवकूफ समझा जाता है। आज लोग ईमानदार कहते हैं इन्हों की पता है, ऐसी से आ गया। ईमानदार को सब कुछ पता होता है, उसका मुंह इसलिए बंद होता है, वो डरता है कहीं मेरा मालिक मुझसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि वक्त नजदीक है। और यहाँ पर लिखा है, जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, यहाँ पर लिखा है खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता
जैसी डेट बास लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करते कि यीशु नासरी ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। क्या कहा जी? कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। और आज ईमानदारों को मौत का डर नहीं है। किनको डर नहीं है? ईमानदारों को। शर्त है कि होवे ईमानदार। क्या शर्त है जी? आज ईमानदार जो है वो ड्रामे में के ड्रामे बनते जा रहे हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं। मैं कहता हूँ जहाँ अगर आपने वहां पर टाइम वेस्ट करना है, आप खुदा की गुरबत में वक्त गुजारे। आप खुदा से कहे, खुदा हम पर कह रहे भेदों को यहाँ कर दे, ऐ खुदावंद हमें आसमानों की बुलंदियों में ले जाइए, क्योंकि लिखा है कि खुदा निकम्मों को चुनता है लेकिन निकम्मा रहने नहीं देता। निकम्मी हरकतें ऐसी करिए और वो खरी गल, लेकिन खुदा निकम्मों को चुनता है लेकिन निकम्मा रहने नहीं देता। मैं जो है वो यूहन्ना की इंजील के अंदर पढ़ रहा था, वहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। क्या कहा जी? गुनाह साबित कर सकता है। यीशु ने क्या जुमला बोले कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो यीशु ने जिंदा होकर मौत को एक लफ्ज बोला। कोई बता सकता है वो क्या लफ्ज? हाँ जी, क्या बोला जी? आज ईमानदारों को मौत का डर नहीं है, शर्त की कि होवे ईमानदार। बेशुमार से लोग कहते हैं कि खुदावंद आपने तो कहा कि मालिक खुदा आप अपने महबूब को नींद ही में दे देते हैं। वो यहोवा खुदा कहता है महबूब तो पहला बन जा, फिर गल कर, है ना, क्योंकि वक्त नजदीक है। और जब मेरे और आपके मसीहा को जो है एक खुदा के बंदा स्कॉलर ने जो है वो यीशु के जलाल के लिए कुछ यूं सिखाया है। और यीशु ने क्या मौत को जिंदा होकर यीशु ने क्या कहा? क्या मौत तेरी फतह कहाँ है, तेरा दंड कहाँ है? इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह होगी ना, इसलिए यीशु ने मौत को डरना है, ये जुमला बोला है। हालेलुया, हम जोरदार तालियां बहन के लिए बजाएंगे। इसकी वजह ये है जो है एक खुदा के बंदा ने कहा कि जब यीशु की लाश को उन्होंने उतार कर कब्र के अंदर रखा, कहां पर रखा? कब्र के अंदर। शैतान जो है वो मौत के पास आता है। किसके पास जाता है? मौत के पास। और मौत से कहता है ऐ मौत, ये यीशु नासरी है, इसने कहा था मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। और शैतान ने मौत से कहा ऐ शैतान, मैं अब ये मेरे कब्जा के अंदर है। शैतान ने मौत से कहा ऐ मौत, ये वो यीशु है जिसने कहा कि मुझे जान देने का भी हथियार है और लेने का भी हथियार है। मौत ने कहा कुछ भी हो अब ये मेरे कब्जा के अंदर है। क्या कहा जी मौत ने? अब ये मेरे कहां पर है? कब्जा के अंदर है। कहां पर है? मौत ने शैतान से कहा है शैतान, मैंने उस खुदा के सूरमा को नहीं छोड़ा जिसकी हड्डी के साथ मुर्दा टकराया, उसका नाम अलीशा है, मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। शैतान ने कहा ऐ मौत, ये वो यीशु है जिसने याईर की बेटी को जिंदा किया, ये वो यीशु है जिसने बेवा के बेटा को जिंदा किया। यहूदियों का क्या कहना है? जब यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा किया, वो कहते हैं ये कौन सी बात है? यहूदियों का कहना है कि 3 दिन तक रूह जो है वो घूमती रहती है और चौथे दिन आसमान टूट जाती है। तो जब यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा किया, कहते हैं ये कौन सी बात है? जब यीशु ने बेवा के बेटा को जिंदा किया, वो कहते हैं ये कौन सी बात है? जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया, उनकी आंखें बाहर आ गई और वो कहने पर मजबूर हो गए वाकई ये खुदा का बेटा। हालेलुया, क्योंकि वक्त जो है वो नजदीक है। और शैतान जो है वो मौत के पास आकर कहता है ऐ मौत, अब यीशु को ना छोड़ना। और मौत ने कहा अब ये मेरे कब्जा के अंदर है। दूसरा दिन आया, शैतान ने कहा इसको मत छोड़ना, और मौत ने कहा अब ये मेरे कब्जा के अंदर है। और जब तीसरा दिन आया, यीशु ने उठकर यही कहा है मौत तेरी फतह कहाँ? हालेलुया, यीशु ने कहा कि मौत तेरी फतह कहाँ पर है? आज मौत का डर जो है वो ईमानदारों को जो है वो नहीं है। किनको डर नहीं है? ईमानदारों को। मैं इस अपनी गवाही को, किसी की गवाही को सुनाए तो बरकत मिलती है, लेकिन जब अपनी जिंदगी के अंदर वाकया हो और बरकत मिलती है। हालेलुया,
करंगी और क्रिस्टन के दरमियान जो है वो मैं इबादत के लिए जा रहा था, 2-3 माह पीछे चल जाए उस वक्त के बाद। बैग जो है वो मैंने पकड़ा हुआ है, पीछे से 2 शख्स आए हैं और उन्होंने जो है वो गन निकाल ली है। इतना फासला जहाँ पर बाइक खड़े हैं। तो मुझे क्या कह रहे हैं, बैग के अंदर क्या है? मैंने कहा ये खुदा का ज़िंदा कलाम है। तो कहते हैं जी हम पीछे भी आपका नुकसान, यानी कि लोगों का इंसाफ, लोगों को जो है वो नुकसान करके आए, अब हमने आपको जो है वो मारना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 3 मरतबा जो है वो चलाई गोली, और 3 मरतबा क्या हुआ, वो चल ही ना सके। जब वो आने लगे मैंने यूं हाथ बढ़ाया, मैंने तेरा काम करना है। तो खुदा की कुदरत के वसीला से वहां पर जो लोग खड़े थे वो कहने लगे ये कैसे हुआ। मैंने उनसे कहा कि जो इंसानों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो। हालेलुया। ये खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में मौजे ना करे तो खुदा का जलाल कैसे जाए। मैं मत्ती पहले बाब के अंदर यीशु के जलाल को देख रहा था। ये यीशु के जलाल के लिए इस बात को बयां करने को वहां पर लिखा है कि इब्राहिम से इसहाक से याकूब से यहूदा से फारस से हसरून से राम से अम्यमताब से नहसून से सलेमोन से बोएस से उबेद से यसी से दाऊद बादशाह से सुलेमान से रुबाम से अबिया से आसा से यूसुफ से यूराम से युकाम से अहस से हिजकिया से मनसी से अमोन से यकोनिया से सियातील से जुरबाबल से अबीहूद से लियाकीम से आजोर से सदूक से हम से याकूद से अलीलाजर से मतान से यकूब से यूसुफ मरियम का शोहर था। जिससे यीशु मसीह पैदा हुए, वही यीशु कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि वक्त जो है वो नजदीक है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा, क्योंकि वक्त जो है वो नजदीक है। इतने सारे नाम लेने का मकसद ये है, यीशु ने कहा कि जब यीशु मसीह अपने खिदमत के मैदान में थे, यीशु ने कहा यहाँ पर वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यहाँ पर वो खड़ा है जो हैकल से भी बड़ा है, यहाँ पर वो खड़ा है जो है वो सुलेमान और इब्राहिम से भी बड़ा है। हम उस खुदा की पूजा करते हैं जिसने हमें जो है वो अपनी ब्लेसिंग से जो है वो बड़ा हुआ है। मैं देख रहा था कि कई लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, कई चांद की पूजा कर रहे हैं, कोई सितारों की पूजा कर रहे हैं, कोई हवा की पूजा कर रहे हैं, कोई दरिया की पूजा कर रहे हैं। हम उसकी पूजा करते हैं जिसने सब कुछ बनाया। हालेलुया। हम किसी के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। हम अपने सरों को झुका